नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और आज हम आपके लेकर आए हैं CCNA में ही नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3, जिसके अंदर हम कवर कराएंगे बहुत सारे टॉपिक। जैसे कि आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ टॉपिक्स इन लास्ट 3 वीडियोज़, okay, which is already uploaded in my channel. You can also watch these videos in the playlist of CCNA. Okay, so दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, और आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कवर कराया था आपके लिए IP एड्रेसिंग, मैक एड्रेस एंड द OSI मॉडल। ठीक है, तो सेम सिनेरियो में अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है आपका TCP/IP मॉडल। ठीक है, हम OSI मॉडल ऑलरेडी कवर्ड करा चुके हैं, है ना। सो इन दिस मॉडल वी हैव 5 लेयर्स। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट OSI मॉडल, सो वी हैव 7 लेयर इन OSI मॉडल। ओके, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, network layer, transport layer, session layer, presentation layer and an application layer. Okay, when now we are talking about TCP/IP model. Okay, according to this model we have only 5 layers. Okay, so first one is the application layer, second one is the transport layer and host to host layer. Okay, third one is the network layer or internet layer, fourth one is a data link layer, and fifth one is a physical layer. Okay, we have only 5 layer. So in this TCP/IP session layer and the presentation layer, we can cover both layer in a transport layer. Okay, so after that now we are talking about some important protocols. Okay, so these protocols are very important because of that when you are become a network engineer, you are working on this protocol on daily basis, as well as when you are taking any interview for a network engineer position. So maybe that possibility is that interviewer ask to some question related to these protocols. Okay, because of that these are the very frequently protocols which are asking about interviews, and because of you are working in this protocol daily basis to identify and troubleshoot your network problems. So we have described here very well according to the OSI model layers. Okay, so remember one thing, all network troubleshooting based on OSI model. Okay, all over networking inbuilt in a OSI model. Okay, when you face any problem, you follow the OSI model and find the root cause and then solve the problems. Okay, we go through according to OSI model layer to layer. After that we find out where is the problem in a network, then we troubleshoot that problem accordingly and rectify the problem. So first layer is application layer. Okay, so we have mentioned multiple protocols here. So HTTP, which is application layer web based protocols. Okay, HTTPS, hypertext transfer protocol, secure. Okay, this is also web based application protocol. DNS, domain name system, DHCP, dynamic host control protocol, telnet, SSH, FTP, TFTP. FTP means file travel protocol and travel file transfer, or file transfer protocol and travel file transfer protocol. Okay, so HTTP क्या है, पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है, 443 पे वर्क करता है ये HTTPS। ठीक है, DNS 50 से 53 है, DHCP 67 68 है, 67 सर्वर के लिए, 68 क्लाइंट के लिए, टेलनेट
SSH 22 है, टेलनेट 23 है, FTP 21 है, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखो एक चीज़ और क्लियर कराता हूँ मैं आपकी यहाँ पे। व्हेन वी आर सर्फिंग इन इंटरनेट ना, एट द टाइम इन अ URL बार वी गोट ए वन मैसेज, दिस लिंक इज नॉट सिक्योर्ड, ओके, यू नो what the information coming in HTTP URL bar. Because of that, this website host on a HTTP, okay. So we got a alarm from internet side, you are working with unsecured website, unsecured link. In this website, in this link, we have information in a plain text format, okay. When we open HTTPS link, any website which are working on HTTPS, at the time this is fully secured, okay. You got a lock symbol in a URL bar, so okay. So in that format, the website all information in a not in a plain text format, in a encrypted format, okay. And DNS ये भी आप जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द DNS है ना, बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द कन्वर्ट टू नेम टू IP and IP to name, दैट्स इट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वर्किंग lot of things, but here you know only small information. I tell you the only small information. Next one is the DHCP, dynamic host control protocol, okay. So this is very important. Interviewer ask one question, what is the DORA process, which is comes from the DHCP. DORA, D for discovery, O for offer, R for request, A for acknowledgement, ठीक है। This is a DORA process. So after that, telnet basically used for taking the remote access of the foreign device of a different location device. Same SSH used for the remote access. But what is the difference between telnet and SSH? In case of telnet, we are using without any security. We are taking remote access without any security. The data will be transferred in a plain text format. But when we are using SSH secure shell, so in that format, the text, the data and your information will be traveled in a encrypted format, okay. And when it comes from the FTP is a file transfer protocol server, okay. This is two function. First protocol have 20, protocol number 20 which is used for server, and the protocol number 21 used for the client. So in that scenario, we have uploaded some information, our company information, our institute information in a server, and we generate a login ID and a password. So we will provide a login ID password to our students and give the IP address. You can log in just this IP address and verify this credential. After that, you can download your study material from the FTP server, okay. So when we are running an organization, so we have uploaded all the software in FTP server. Because of that, we have a lot of systems in a company, and we have multiple IT engineer in a company, so it is not possible to provide all software in a hardware forms, just like a CD, DVD, pen drive, and hard disk, etc. So we have do one thing. In that scenario, we have upload all the software in our FTP server. When the IT person goes to any person which are facing any problem, so they just log in the admin credential and download the software and install the software in a device, okay. This is very useful, okay. So next layer is a transport layer, okay. So in this layer, there are two most important thing which is decide this is a secure information or not secured information, based on the TCP and UDP header, okay. Third one is the internet layer. So in this layer, only two most protocols are exist. First one is the IP header, and second one is the ICMP, Internet Control Message Protocol, okay. And last one is the data link layer. So in that layer, we have lot of protocols. First one is the Ethernet header,
ARP header, MAC address and CDP, Cisco Discovery Protocols, which is a Cisco proprietary, not for all over the devices. Okay, MAC ARP header, you know very well what is the ARP. Okay, so these are the protocols. Now goes to the next one. So I have already described to you HTTP, Hyper Transfer Protocol, to exchange web page between client and server, encapsulating in TCP with port number 80. Already I have told you it is not encrypted or secure. Okay, and all data sent in a clear text format. All right, when you goes to in HTTPS, so HTTPS is मतलब HTTP secure. In this format, in this protocols, the data will be transferred with encrypted format, and the port number is 443. Its work on the secure cell. FTP file transfer protocols 2021. Already I have told you. Do one thing, when you are making notes now with my videos, that is good for you. Because of that, watching the video every time is not possible. So do one thing, in a single time when you're watching this video na, take a copy and pen, then make a notes properly. I am sure about that, and I assure you कि इससे अच्छा मटेरियल आपको कहीं पे मिल पाएगा इतना सिंपल वे में। बहुत मिलेगा मटेरियल, इंटरनेट पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। मैंने भी वहाँ से ही डाउनलोड करके फ़िल्टर करके तब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए लाया हूँ। ये मेरे कोई अपने पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं सारा मेहनत करने से बचा रहा हूँ। आप सिर्फ ये वीडियो देख के अपने नोट्स प्रिपेयर करें और नोट्स बनाएं। मेरा वादा है आपसे कि आप ये वीडियो देखने के बाद में कहीं से कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है CCNA की आपको, ठीक है। इवन मैं CCNP भी कवर करा दूंगा इनमें, ठीक है। बट आपको वीडियो देखना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो डेटा अनसिक्योर्ड, वी कैन ब्राउज थ्रू फाइल एंड फोल्डर, FTP के बारे में है ये आपका। एंड नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ अ TFTP, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द file sharing. You cannot browse through files plus folders. In fact, you have to type exact file name to get the data download. So when we go to the library at the time, we directly don't go to search any books. Okay, first we ask to librarian, sir, do we have this book in our library? At the time, that person, that librarian, search that book name in a system, and at the time he told you this book we have available, and this is set up in a this number rack and this place, this position. After that you go to that position and take the book. Otherwise, suppose that we have a very big library, how can you identify, how can you search that file? Okay, so इनकैप्सुलेटिंग फॉर्मेट में रहता है। UDP पोर्ट नंबर 69 पे चलता है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। डेटा इज अनसिक्योर एंड कैन नॉट बी सिक्योर्ड इन एनी वे, ठीक है। अनसिक्योर्ड है फुल्ली, हम उसको सिक्योर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। इन ऑर्डर टू सिक्योर एनी फाइल, इट रिकमेंडेड टू असाइन ए टिपिकल फाइल नेम, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये मैं आपको IP हेडर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहीं पे, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ना कोई इंटरव्यू पूछता है ना कुछ है, बट कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जब आप ट्रबल शूटिंग करते हो नेटवर्क में, ठीक है। इसमें क्या है देखो, फर्स्ट 16 बिट सोर्स पोर्ट, 16 बिट डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। टोटल हो गया 32 बिट्स। सेकेंड में 32 बिट्स का सीक्वेंस नंबर रहेगा। थर्ड वाले में 32 बिट्स का एक्नॉलेजमेंट नंबर रहेगा। फोर्थ में हम उसको मल्टीपल सेक्शन डिवाइड किए हैं। फर्स्ट 4 बिट जो है वो हेडर लेंथ है, 3 बिट रिजर्व्ड है, 1 बिट का फ्लैग है, ठीक है, एंड 16 बिट का विंडो साइज डेटा है। उसके बाद में इसी में ही हम 16 बिट का TCP चेकसम वैल्यू रखते हैं, 16 बिट का अर्जेंट पॉइंटर रखते हैं, और 30 बिट का ऑप्शन रखते हैं एंड डेटा रखते हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या है, चेकसम भी हम रख के भेजते हैं। आपको पता है जब हम एक इन्फॉर्मेशन एक फर्स्ट लोकेशन टू सेकंड लोकेशन भेजते हैं तो हमें पता होना चाहिए, ये दूसरे पर्सन को पता होना चाहिए ना हमने कितनी इन्फॉर्मेशन भेजी है। वो उसको चेकसम वैल्यू से मैच करते हैं। अगर वो इक्वल टू चेकसम वैल्यू है ऑल द रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट द टाइम द ट्रांसफर विल बी सक्सेसफुल इफ दे फाउंड एनी एरर इन अ चेकसम वैल्यू एज कम्पेयर टू रिसीव डेटा वैल्यू, सो इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द डेटा इज नॉट correctly, so they request to the source kindly send the data again because of that we did not get a proper data. ओके, सो ये सब चीज़ें डिसाइड होती है हेडर से। हेडर मतलब क्या है, आपने कोई लेटर भेजा किसी इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, उस लेटर के ऊपर जो आपने नाम फॉर्मेट लिखा है ना, जो मतलब समझो ये मान के चलो हमने कोई ऑर्डर किया है अमेज़ोन से, अमेज़ोन के जो ऑर्डर है वो तो एक बॉक्स के अंदर आएगा, बट वो कस्टम से कैसे क्लियरेंस होगा उसका, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम, एक बाहर एक चिट लगाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो दैट इज़ अ हेडर ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ द शिपमेंट, ठीक है। सो ये सब चीज़ें वही हैं जो मैं आपको बताया था अभी हेडर में, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, सो क्या यूज़ है इसका, इन क्या काम करता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इट इज़ यूज टू वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके, जो दोस्तों पिंग है ना, पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है, वो इसी प्रोटोकॉल्स पे के साथ काम करता है, ठीक है। यूटिलिटी टूल्स, पिंग पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। नेक्स्ट है ट्रेस रूट, ट्रेसिंग द पार्ट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखो दो टर्म्स हैं, एक है ट्रेस रूट और एक है ट्रेस RT, ठीक है। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज वी आर वेरी कन्फ्यूज इन बोथ टर्म्स। In a router we take a trace route, in a Windows we take a trace RT. Alright, I am repeat again, when you are doing tracing in a router, you are doing trace route, you are taking. When you are searching, you are finding the source and between source and destination, how many hops and how many packets are dropped and received in a Windows at the time you are doing a trace RT. Okay, and मैसेजिंग में क्या होता है, क्वेरी है, इको रिप्लाई, इको, ये कुछ नहीं ज़्यादा है, ठीक है। एरर के बारे में, क्या एरर आ रहा है, ठीक है, ये बिट्स के साथ बता रखा है मैंने आपको। इंटरनेट हेडर है, प्रेम्बल्स है, SFD है, डेस्टिनेशन सोर्स है, टाइप है, डेटा पाथ है, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्रेम्बल, FLP, first link pulse, okay. Ethernet frames start between 7 bytes preamble. This is a pattern of a alternative 0 and 1 which indicates starting of the frame and allow sender and receiver to establish bit synchronization. Initially pre-preamble was introduced to allow for a loss of a low bits due to signal delay, but today's high speed Ethernet do not preamble to protect the frame bits, ठीक है। सेम SFD है, बट आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो इनके प्रेम्बल SFD के, बट ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोर्स मैक से क्या इंडिकेट होता है, सोर्स मैक मतलब हमारा मैक, ठीक है। डेस्टिनेशन मतलब मैक, सेकेंड पर्सन मैक, सेकेंड डिवाइस मैक, ठीक है। अभी देखिए डेटा एंड पैडिंग, ये है कैलकुलेशन पार्ट है, बट इतना डीपली आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नोट्स पर्पज से आपके लिए बताया था, ठीक है। क्या MTU डज नॉट इंक्लूड द हेडर साइज, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन रिड्यूस एंड इंक्रीज द MTU साइज, ओके। सो वायर एंड केबल्स के बारे में है, आपको बस बेसिक नॉलेज लेने की ज़रूरत है वायर्स एंड केबल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये क्या भाई, सीरियल केबल, वेयर वी कैन यूज सीरियल केबल्स, व्हाट इज़ द यूज ऑफ सीरियल केबल्स, where we can find the serial ports, okay. What is the coaxial cables, what is the LAN cable, what is the
ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओके, दिस आर द केबल्स। सो सीरियल केबल क्या है बेसिकली, ये आपका राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए आता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ नो एज अ पॉइंट टू पॉइंट केबल। स्पीड जो है इसकी दोस्तों बहुत कम रहती है, 1.554 Mbps रहती है ओनली, दैट्स इट। बहुत पहले टाइम यूज़ होता है, अब नहीं होता यूज़, ठीक है। कोएक्सियल केबल है, सेम है। कोएक्सियल केबल आपके घर पे डिस्क का केबल आता ही है, सिंगल वायर रहता है उसके अंदर एक कॉपर का, बाद में उसके ऊपर एक क्लोटिंग रहती है सिलिकॉन की, उसके बाद में फिर उस पर एक उसका स्टील का एक कोटिंग रहती है, और फिर बाद में एक प्लास्टिक की कोटिंग रहती है ऊपर से, तो वो दैट इज़ अ कोएक्सियल केबल। बहुत पुराना टाइम का ये भी, पहले इसमें कंप्यूटर के लिए यूज़ करते थे, बट राइट नाउ ओनली बी सम ऑफ प्राइवेट ISP यूजिंग दिस केबल टू प्रोवाइड एज अ ट्रिपल प्ले सर्विसेज सम टाइम यूज ऑफ द मीडिया कन्वर्टर, ओके, बट बेसिकली इट इज़ यूज फॉर डिस्कनेक्शन, सिंगल कोर का रहता है। ईथरनेट केबल आप सभी जानते हैं, ठीक है, हम सिस्टम में यूज़ करते हैं उसको, सिस्टम इंटरनेट चलाने के लिए। सम ISP उसको रिवर्स PoE पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके इंटरनेट भी चला रहे हैं लोगों को यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क सेटअप करते हैं, एक स्विच लगाएंगे 48 पोर्ट्स का या 24 पोर्ट्स का, एक सोसाइटी में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इतने यूज़र चला सकते हैं। उसके बाद में एक लैन केबल उससे कनेक्ट करेंगे और कस्टमर एंड पे एक राउटर लगाएंगे, और वो जो राउटर है वो उसके पास में एक स्विच लगेगा रिवर्स PoE का। उससे क्या होगा कि मतलब वो कस्टमर यहाँ एंड से ही उस स्विच के लिए पावर देते हैं, जो स्विच उनका बाहर आउटसाइड लगा हुआ है, वो कहीं से अलग पावर नहीं लाते। मान लो 24 पोर्ट्स का स्विच है हमारा, अगर उनमें से सिंगल कोई भी एक भी चल रहा है ना, एक भी यूज़र चला रहा है इंटरनेट, तो वो स्विच लाइव रहेगा उसके यहाँ से, सभी चला रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो वो इसमें यूज़ होता है। अब इसमें भी इथन जो लैन केबल है, लैन केबल में भी बहुत सारे अब वर्जन आ चुके हैं, ठीक है। लैन कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7, ठीक है, वो सारे आ चुके हैं। क्रॉसओवर केबल, ठीक है, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच, PC टू PC, राउटर टू PC कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। स्टेट केबल जो है सेम, ये राउटर स्विच करने के लिए डिफरेंट चीज़ को कनेक्ट करेंगे तब यूज़ होता है। ये कुछ कोड्स हैं, ज़रूरत नहीं है इनकी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हार्डवेयर ऑन डिवाइसेस। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी, दिस इज डिफाइंड बूट सीक्वेंस ऑफ ए डिवाइस, ओके। फिर है हमारा रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल कॉन्फ़िगरेशन और टास्क ऑफ ए डिवाइस वर्किंग इन रैम, ठीक है, एंड ऑल रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल इन रैम। फिर थर्ड वन है हमारा NV रैम, नॉन वायलेट रैम, और लास्ट है हमारा फ्लैश, ठीक है, विच इज़ यूज़ फॉर iOS के लिए। अभी क्या है, ये हमारा बूट स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, कैसे डिवाइड बूट करती है, ठीक है, स्टार्ट होती है। एंड नेक्स्ट और लास्ट आज की वीडियो के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो है एक्सेस डिवाइस, ठीक है, हाउ वी कैन एक्सेस टू द डिवाइस, ओके। वी हैव टू मेथड टू एक्सेस द डिवाइस। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल एक्सेस बाय कंसोल, सेकेंड one is the remote access by telnet or SSH, okay. So this is second remote access telnet or SSH. So both of them we have two scenarios, CLI and GUI. CLI means command line interface, in which all configuration is done through command, okay. When you are set up a one location, you are doing some configuration to a remote location, so at the time you just taking the remote access via telnet or SSH, you are taking a command and the device automatically accepts this command, okay. You can do anything via remote through telnet or SSH. Before taking remote access, you need to enable telnet or SSH in your foreign device, okay. After that you can do, otherwise you cannot do, okay. Second thing है GUI user interface, all configuration डन बाई GUI, ओके। तो ये हमारे मेथड थे। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आप इस वीडियो के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, तभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वीडियो वॉच करना। एंड आई एम श्योर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है CCNA करने के लिए, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो वॉच कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। एंड नाउ आई हैव वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो वी हैव कंप्लीट टुडे 50 पेजेस
okay, and lot of topics. So we have total 131 page in this CCNA course, okay. तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए भी टाइम रहे और मेरे को भी टाइम तभी मिल पाता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।